Good morning, dear students. Today I am here to tell you about the class 9th science topic, lesson number 2, that is pure substances. So, pure substances, I have told you earlier also, the pure substances are those substances which is made up of only one kind of particles. There is no mixing of any other compound. We can say this is the pure substance. And pure substance, we have the two categories. Pure substances have two category. One is your element and other is your compounds. So elements are made up of only one kind of particles that cannot be broken down into or simpler form. That is why they are known as the pure substances. Up now, pure substances may elements can also categorize into the three types. What is these three types? Metals, non-metals and metalloids. Up metals, what do you mean by metals? Have you heard the metals? In 8th class also you have studied the metals. Metals are the elements only, and they have the luster, they have the shine, they are the good conductor of heat and electricity. They are gray or golden yellow in color. They are malleable and ductile. Malleable means they can be converted into sheets and ductile means they can be converted into wires. वो wires में भी convert की जा सकती हैं. एंड दे आर द सोनरस, दे कैन प्रोड्यूस द साउंड. जो आपकी स्कूल बेल है वो कॉपर मेटल की है या कोई भी मेटल से उसमें जब उस पर स्ट्राइक करते हैं तो वो आपको सुनाई देती है. दे आर द सोनरस ऑल्सो, दे प्रोड्यूस द साउंड. फॉर एग्जाम्पल gold, silver, sodium, all these are the examples of metal. All metals are solid except mercury. Mercury is the metal which is liquid at room temperature. This is the exception. So questions can also come from the exception. So elements की category में we have the three types: metal, non-metal and metalloids. Metals, we have the properties, they have the luster, they the silvery gray and golden yellow color. They are the malleable. Malleable means they can be converted into sheets. They are the ductile. Ductile means they can be converted into thin wires, and they are the good conductor of heat and electricity. Through them heat and electricity can pass. For example, in aluminium utensils you cook your food. In copper utensils you also cook your food. So you cook your food in aluminium utensil. Aluminium is a metal. Why you can cook in that? Because it is a good conductor of heat. The heat can pass through them and food can cook. And second, they are the good conductor of electricity also. From them electricity can also passes. For example, copper wire we are using at home, that can conduct the electricity. Now next is this is the metals. What about the non-metals? Non-metal properties are the opposite to the metal properties. They don't have the variety of colors. Variety of colors they are having. They don't particular, like we can say in the metals they are the silverish gray and golden yellow. There can be variety of colors in the non-metals. They are not sonorous. They are not malleable. They are not ductile. They are the poor conductor of heat and electricity. ये poor conductor होते हैं heat and electricity के. They don't have shine, they don't have luster. उनके पास shine नहीं होती, luster नहीं होता. And for example, we can say hydrogen, oxygen, carbon. अब we are saying कि non metals are the poor conductor of heat and electricity. So carbon एक ऐसा exception है. Carbon जो है nature में वो दो forms में उसके allotropes मिलते हैं, diamond and graphite. Have you heard about that? Graphite is the allotrope of carbon and which is a good conductor of electricity. This is also the exception. कि सभी जो non metals हैं, they do not conduct the electricity except graphite can conduct the electricity, and graphite is the allotrope of carbon. And third one is the metalloids. Metalloids क्या है? They are the elements which have the properties in between the metals and non-metals. ना तो उनकी completely properties metal से मिलती हैं ना non-metal से. कुछ इंटरमीडिएट है. इंटरमीडिएट मतलब कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की है, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की है. और इनके एग्जांपल्स कौन से हैं? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और भी हैं. आपने इतने थोड़े बहुत लर्न करने पड़ेंगे. इनके एग्जांपल्स तीन. Right, so this is the classification of the elements, and elements are categorized under of the pure substances. So before I discuss about the compound, first you should know what do you mean by physical and the chemical change. Physical and chemical change क्या होते हैं? देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लेसन नंबर 1 में पढ़ चुके हो. फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे आपकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हम किसी चीज को मेल्टिंग करते हैं, सब्लिमेशन करते हैं. ऑल दीज आर प्रोसेसेस आर द मेल्टिंग पॉइंट. जैसे कोई भी उसकी कलर है, हार्डनेस है, रिजिडिटी है, फ्लूइडिटी है, डेंसिटी है उसकी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है. अगर इनके अंदर चेंज आता है तो हम कहते हैं फिजिकल चेंज आया. फॉर एग्जाम्पल, अब
बटर है, हमने बोला मेल्टिंग ऑफ बटर, आपने बटर को मेल्ट कर दिया, थोड़ी देर बाद रख दिया, वापस से वो क्या होगा, फ्रिज में रख दिया तो वो बटर बन जाएगा। तो ये फिजिकल जो चेंज होते हैं दे आर द रिवर्सिबल चेंज, दे कैन बी रिवर्स, और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही चेंज आता है, मेल्ट कर दिया, केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं आता। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होगी, उसका कलर चेंज होगा, हार्डनेस चेंज हो जाएगी, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये फिजिकल डेंसिटी, ये चीजें चेंज हो जाएंगी। और केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे भी उसका बिल्कुल स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, उसकी कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगी, बिल्कुल ही एक न्यू सब्सटेंस बन जाएगा केमिकल चेंज से। तो उसे हम बोलते हैं केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई पेपर आपने लिया, ठीक है, पेपर को आपने टीयर किया, इफ यू टीयर द पेपर then this is a physical change, you can write on that paper, even that after tearing the paper you can write on that paper, that means the property did not change of the paper. But if you burn that paper, if you burn that paper, then the new substance will be formed and you cannot write on that burned paper, so that means this is a chemical change that cannot be reversed back, right? So physical change and chemical change, this is the basic difference. In physical changes it can be reversible also, and all the physical properties can change. In chemical change we get the new substances form, new substance आपका बन जाता है, right? New substance बनता है with the new properties, नई properties के साथ। For example, जैसे अब आपने मिल्क है, मिल्क को आपने हीट किया, पहले मिल्क ठंडा था फ्रिज में, आपने उसे हीट करा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज हो गया, मेल्टिंग पॉइंट आपने बढ़ा दिया। लेकिन उसी मिल्क से कंसिडर करो आपकी मदर ने कर्ड बना दी, तो वो केमिकल चेंज हो गया, कर्ड तो बिल्कुल खाने में अलग, मिल्क बिल्कुल अलग, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, बिल्कुल चेंज हो गई। तो मिल्क से जो कर्ड बना वो आपका क्या है, दैट इज योर केमिकल चेंज। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंज के आपकी बुक में काफी सारे एग्जांपल दे रखे हैं। अब वो कह रहे हैं कि वाटर एंड कुकिंग ऑयल लिक्विड है, लेकिन उनके केमिकल करेक्टरिस्टिक्स अलग है। जैसे वाटर है एंड कुकिंग ऑयल है, बोथ आर लिक्विड, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है। अब कैसे अलग है, वाटर तो जो है वो क्या करता है, आग को बुझाने में काम आता है जब भी कहीं बर्निंग हो, और ऑयल क्या करता है, आग को सपोर्ट करता है, जहां पे भी आप ऑयल और डाल दोगे फायर बढ़ेगी, दोनों ही लिक्विड है। तो ये दोनों जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। तो केमिकल जो है, केमिकल चेंज दैट डिपेंड्स अपॉन द व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कि जिससे वो बना हुआ है उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट जो आपका एक ही इसमें केस है, जैसे कि आपका बर्निंग ऑफ पेपर, तो चलो केमिकल चेंज आ गया। आई कैन से बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल किस तरह का चेंज है, देखो उसमें जो बाहर वैक्स है वो मेल्ट हो रही है, मेल्ट हो रही है, वो वापस से भी कैंडल बनाई जा सकती है उस वैक्स से। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स, उसके अंदर तो फिजिकल चेंज है, तो बीच में उसकी विक होती है जिससे वो आग लगी हुई है, जिसमें आपने जलाई हुई है, वो विक होती है, वो ब्लैक कलर की, वो जल रही है और वो गैस में बाहर कन्वर्ट भी हो रही है, और वो एंड में ऐश भी बन जाएगी, तो दैट इज योर केमिकल चेंज। सो बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ काइंड ऑफ अ बोथ एग्जाम्पल, वी कैन से केमिकल चेंज इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस and physical change is also taking place in case of burning of candle. Now next हमारा जो टॉपिक आता है वो इसी से रिलेटेड है, मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर एंड कंपाउंड, अगर आपको फिजिकल एंड केमिकल चेंज आपको समझ आए हुए, देन यू कैन इजिली एबल टू अंडरस्टैंड द मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर एंड कंपाउंड में आपकी बुक में बड़ी अच्छी एक एक्टिविटी दे रखी है, आयरन एंड सल्फर की, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है कि आयरन एंड सल्फर। अब आयरन एंड सल्फर की एक्टिविटी जो आपकी दे रखी है बच्चा, उसमें ये दे रखा है कि आपने क्या करना है, ग्रुप डिवाइड कर लेना है, दैट इज योर मिक्सचर एंड वन इज योर कंपाउंड। अब मिक्सचर में व्हाट यू कैन डू, मिक्सचर में आप क्या कर सकते हो बच्चे, मिक्सचर में वो कह रहा है कि आयरन और सल्फर पाउडर, आयरन प्लस सल्फर पाउडर दोनों आपने ले लिया। इस एक्टिविटी में आपने, आपकी एक्टिविटी 2.10 है बुक के अंदर, तो आयरन और सल्फर पाउडर को लेना है, वो तो एक मिक्सचर हो गया, दोनों को हमने मिक्स कर दिया, दोनों ग्रेइश ब्राउन ब्लैक कलर के होते हैं, पाउडर फॉर्म में, दोनों को मिक्स कर दिया। अब कंपाउंड में वो क्या कह रहा है कि इन दोनों को, मिक्सचर को आपने क्या कर देना है, हीट कर देना है, इस मिक्सचर को आपने क्या कर देना है, हीट कर देना है। तो जब आप उसे हीट करोगे तो एक रेड से कलर का कंपाउंड, न्यू कंपाउंड आपका बन जाएगा। देखिए वही कह रहा है कि इन दोनों में हमें क्या कर देना है, इसे हीट कर देना है, तब तक करना है कि, और फिर उसके बाद मिक्सचर को हमें ठंडा होने देना है। फिर उसके बाद वो कह रहा है कंपेयर द टेक्सचर कलर। इसके बाद आपने क्या डालना है, वो कह रहा है कार्बन डाइसल्फाइड ऐड कीजिए, कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में कह रहा है ऐड करो। फिर वो कह रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करो,
तो जब वो कह रहे हैं फिर इनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करो, इनका टेक्सचर कंपेयर करो, इनका कलर कंपेयर करो, तो हम देखेंगे जो मिक्सचर है जिसमें हमने दो चीजों को सिंपली मिक्स कर दिया। अब उसके पास अगर हम मैग्नेट लेके आते हैं, इस मिक्सचर के पास हम मैग्नेट लेके आए, तो उसमें जो ये आयरन पाउडर था, जो आयरन फिलिंग्स थी, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे और सेपरेट हो जाएगा। लेकिन अगर कंपाउंड के पास हम मैग्नेट लेके जाएंगे, ये दोनों हीट हो चुकी है, मेल्ट हो चुकी है, एक नया कंपाउंड बन गया है, तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि कंपाउंड में एक न्यू कंपाउंड बन गया, ये दोनों चीजों को जब हमने हीट कर दिया, लेकिन इसमें बिना हीट के मिक्सचर है, तो वो हीट होके एक नया कंपाउंड बन गया। फिर वो जो जिससे बना हुआ था, किससे बना हुआ था, आयरन एंड सल्फर पाउडर से। आयरन एंड सल्फर पाउडर की वो प्रॉपर्टीज शो नहीं करेगा जब वो कंपाउंड बन जाएगा, लेकिन फिजिकल मिक्सचर के अंदर वो आयरन की प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं। कंपाउंड के अंदर वो आयरन की प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि उसमें एक न्यू कंपाउंड बन गया विद द न्यू प्रॉपर्टीज। That is why it is known as the compound with the chemical change. New compound is formed with the new chemical properties. एंड सेकेंड, जब CH2 डालेंगे तो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, वो उसके अंदर कंपाउंड के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। अगेन दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टीज, नई चीज बन चुकी है। उसके बाद जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, तो दोनों में जो गैसेस हैं वो अलग अलग प्रोड्यूस होंगी। जब इसमें हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, तो इसमें हमारी H2 गैस प्रोड्यूस होगी और इसमें हमारी H2S गैस प्रोड्यूस होगी। इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन गैस, एंड इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब है दोनों वही सेम चीज है। हाइड्रोजन जो गैस है, इसमें आपका लिखा भी हुआ है कि हाइड्रोजन गैस इसमें प्रोड्यूस होगी। दोनों गैसेस की प्रॉपर्टीज जो है बच्चे क्या है, वो डिफरेंट है। हाइड्रोजन गैस जो है, इट इज द कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होगी और कंबस्टिबल है, जलाने में हेल्प करती है, और कलर भी नहीं होगा, कोई ऑर्डर भी नहीं होगा। लेकिन जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, ये भी कलरलेस गैस है विद द स्मेल ऑफ रॉटन एग्स। बहुत ही सड़े हुए जैसे अंडे होते हैं ना, रॉटन एग्स की स्मेल आएगी, इससे बहुत ही गंदी स्मेल आएगी। अब दोनों की इसमें प्रॉपर्टीज क्या होगी, चेंज होगी। दोनों एक ही चीज थी। हमने पहले क्या करा, क्या बेसिकली क्या एक्टिविटी है कि हमने आयरन और सल्फर पाउडर को लेके मिक्स कर दिया, वो तो मिक्सचर हो गया। फिर हमने उसे दो मतलब पार्ट ले लिए, राइट। तो दूसरे पार्ट में हमने उसे क्या करा, मिक्सचर और जो सल्फर का वो था उसे हमने हीट कर दिया। हीट करने से एक न्यू कंपाउंड बन गया, तो वो बन गया कंपाउंड, और जो सिंपली मिक्स करा था वो बन गया मिक्सचर। और फिर हमने उसमें उसकी मैग्नेट से देखा, ये अट्रैक्ट हुआ, वो अट्रैक्ट नहीं हुआ। कार्बन डाइसल्फाइड देखा, सॉल्युबल हुआ, इनसॉल्युबल हुआ। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, H2 गैस प्रोड्यूस हुई, H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये डिफरेंस आया। तो इस डिफरेंस से हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। आपकी बुक में दे रखा है मिक्सचर एंड कंपाउंड ऑन पेज नंबर 26, दैट इज टेबल 2.2। ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो मिक्सचर क्या हुआ, मिक्सचर क्या हुआ कि जब हमने एलिमेंट्स को हमने सिर्फ मिक्स कर दिया, वी हैव जस्ट मिक्स टुगेदर एंड न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, बट नो न्यू प्रॉपर्टीज, कोई न्यू प्रॉपर्टीज नहीं, किसी भी रेशियो में आपने मिक्स कर दिया। अब इसमें एलिमेंट्स को हमने मिक्स करा तो एक न्यू कंपाउंड बन गया, ठीक है, इसके अंदर। फिर हम कह सकते हैं मिक्सचर की वेरिएबल कंपोजिशन, कि आप कितना भी ले सकते हो, कितना भी, कोई इसमें फिक्स नहीं है। लेकिन अगर आपको कंपाउंड बनाना है तो दे हैव द फिक्स कंपोजिशन, उनकी फिक्स कंपोजिशन है, तभी वो कंपाउंड बनेगा। मिक्सचर जो है वो अपना जिससे बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स, उसकी प्रॉपर्टीज शो करता है। लेकिन कंपाउंड जिससे बना हुआ है वो उसकी प्रॉपर्टीज शो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो तो एक नया कंपाउंड बन गया विद द न्यू प्रॉपर्टीज। इसमें हम मिक्सचर में बोलेंगे दे कैन बी सेपरेटेड बाय इजीली फिजिकल मेथड। जैसे अब ये आयरन और सल्फर पाउडर का मिक्सचर मुझे सेपरेट करना है, मैं सिंपली मैग्नेट लगाऊंगी, आयरन फिलिंग्स अलग हो जाएंगी, सल्फर अलग हो जाएगा। तो दैट मींस इट कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। बट जो इसमें है कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, वी हैव टू अप्लाई सम केमिकल मेथड। हमें कुछ केमिकल मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे इन्हें सेपरेट करने के लिए। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ द मिक्सचर एंड compound. So this chapter is over now. At the end there is a table is given, that is also very important. Matter is of two types, pure substances and mixture. Pure substances is of two types, elements and compounds. And mixture are of two types, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. And elements can also, अभी मैंने आपको बताया तीन कैटेगरी होगी, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। एंड कंपाउंड्स आपकी दे हैव द फिक्स कंपोजिशन। तो कंपाउंड जैसे आपका जो वाटर है, शुगर है, मीथेन है, ये आपका
सल्फ्यूरिक एसिड है, कार्बन डाइसल्फाइड, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द कंपाउंड्स। ये सारे कंपाउंड के एग्जांपल है। वाटर कंपाउंड का एग्जांपल, ठीक है। आपका शुगर, मीथेन गैस, सारे आपके कंपाउंड्स के एग्जांपल है, क्योंकि इनका फिक्स रेशियो। Compounds may they have the fixed composition, and mixture they don't have the fixed composition. In any composition you can mix and you can get the mixture, and in compound they have the new substances formed with the new properties. So this is chapter is over. Thank you everyone.